गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy, chapter number 4, that is journal. Before coming to the chapter, I'll revise chapter number 2, some rules of accounts, the golden rules of accounts. As you have seen over there are 3 types of accounts: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Personal accounts, the rules were debit the receiver, credit the giver. Nominal account, real accounts, the rules were debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, the rules were debit the expense and loss, credit the incomes and gains. Based on that only we will be preparing the journal. Okay. Journal, what do you mean by journal? Okay. Meaning of journal, it is a book of recording. Okay. It is the first book, the fundamental book as we can see. Okay. It is the first book of accounting based on the rules of debit and credit. Okay. A recording process. A recording process of accounting transactions. Process of accounting transactions. A recording process of accounting transactions based on rules of debit and credit. A recording process of accounting transactions based on the rules of debit and credit in the first book of accounts. In the first book of accounts is known as journal. Okay, the book in which the transactions are recorded is known as journal book. This book में transactions की information आपने दी जाती है, that is called as journal book. It is a fundamental, basic and prime books of accounting based on the vouchers on daily basis. Based on the vouchers, we used to write the entries. Okay, in the journal. Based on the vouchers, we used to write the entries in the journal. We have already seen how to record the entries in the journal. Okay. First, we got to give the heading, journal entry in the books of so and so. For the month-wise, we used to record the entries. For the month of, supposedly, January 2019. Okay, then date, particulars, LF, ledger folio. Then debit rupees and credit rupees. Okay. The transactions now, you are very much able to classify the transactions, which account will be debited and which account will be credited. You already know how to pass the effects. We have already seen that. How to make the entries and how to pass the effect, how to record it. Okay. So now I will record the entries. Okay. Without the columns. You
got to pass the entries in the column itself. Okay, I'll roughly make the column. You got to prepare the column with scale and pencil. Okay, so the columns as such, date, then it is particulars, then it is LF, that's ledger folio, then debit rupees, and then credit rupees. Okay. Simple entries we have already seen, some of the simple entries. Okay, we have already seen that. Even I have given you the homework for that, for simple entries. Now we will see the combined entries. What do you mean by combined entries? Okay. Supposedly, in that particular day itself, we are doing more than one transaction. Suppose purchase goods of rupees 5,000 in cash. Purchase goods of rupees 5,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Purchase furniture of rupees 3,000 in cash. पहले हमने क्या किया? Goods purchase किया 5,000 का कैश में. सैलरी पे की 4,000 की कैश में. फर्नीचर परचेस किया 3,000 का कैश में. अब सबकी अगर अलग अलग आप एंट्री पास करें, यू कैन सी पहले की एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. देन मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं. पहले की आप एंट्री पास कर दे, अगर परचेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000. ऐसे लिखना कंपल्सरी है, पता है कैसे लिखना होता है? एक्सक्यूज मी. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस्ड. ओके, उसी सेम डेट पे सपोज हमने किया था सैलरी पे की थी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस. ओके, 4,000 बीइंग सैलरी पेड इन कैश. उसके बाद सेम डेट पे आपने किया था फर्नीचर परचेस किया था. फर्नीचर कब से? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो तीन एंट्री में अलग अलग भी पास कर सकता हूं या उसकी मैं कंबाइन करता हूं. एज आई कैन सी कैश कैश कैश, सॉरी सैलरी टू कैश. एज आई कैन सी कैश कैश कैश. ओके, तीनों के क्रेडिट में कैश अवेलेबल. तो मैं इसे कंबाइन कर दूं तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000, टू कैश अकाउंट 5, 9, 12,000. Being goods purchase, salary paid and furniture purchased in cash. तो हम इसको बोलते हैं combined entry. This we call it as combined entry. Okay, so we'll be learning about the combined entry. Simple entries we have already seen. Okay, then after this combined entry we will be learning about the trade discounts and cash discount कब देना है और कब नहीं देना. So slowly, gradually, step by step, we'll be learning. Whatever homeworks I am giving it to you, kindly got to solve it out and send me upon proper time. 5 to 6 is your time for giving calls if you have any doubts, and 6 to 7 you have to compulsorily send me the homeworks according to the roll number groups, whatever is allotted to you. Okay. So based on the accounting rules, golden rules of accounting, you have to think about and you got to pass the entries. Okay, this is the main book of accounts. After this only, the next step will be for ledger. Okay, so individually we are making the books for individual accounts, that is for ledger. Then from the ledger, we used to prepare the trial balance, and then afterwards, as the trial balance got tallied, okay, then we go for annual accounts in the month of March. So, it is the first primary, basic, fundamental books of accountancy which you have to learn it very properly.
ये आएगा तो आपका अकाउंट्स और इजी हो जाएगा. नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट 11th स्टैंडर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी. फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ अकाउंटेंसी you have to compulsorily know to pass the entries. Each and everywhere in accountancy you must be knowing to pass the respective entries. So better start practicing the sums, solve the sums again and again. Try to understand the transactions which is given, what the transactions need to narrate, क्या बताना चाहता है वो आप समझे और based on that फिर इसकी entry पास करें. Okay. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe and keep learning. Continue watching the video till the end. Thanks again. Welcoming you all once again for the transactions of goods and assets. In the previous lecture we have seen about the transactions relating to capital and drawings. So when capital, when drawings, we have tried to understand that. Now we will be dealing with goods and assets. Okay. Both are the part of real accounts. Once again I would like to tell you the rules for real accounts. Debit what comes in and credit what goes out. From the point of view of the businessman, we have to consider this thing. So let us start with illustration number 4. Pass journal entries for the following transactions of Gokul Traders. You got to pass the journal entries in the books of Gokul Traders. Consider yourself that you are only Gokul Traders. आप अपने को गोकुल ट्रेडर्स समझ के उसकी एंट्री पास करते हैं, राइट? ओके. सो 2014 अप्रैल 1 ब्रॉड कैश रुपीज 10,000, स्टॉक रुपीज 10,000, फर्नीचर रुपीज 5,000 एंड कमेंस द बिजनेस. कैश लेके आया 10,000, स्टॉक लेके आया 10,000, फर्नीचर लेके आया 5,000, बिजनेस चालू किया. ये सब ओनर लेके आता है. ओनर कुछ भी लेके आया तो क्या बनता है? कैपिटल. तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, furniture account debit 5,000 to capital account. Let us check the answer. Cash account debit 10,000, stock account debit 10,000, furniture account debit 5,000 to capital. Total of all is 25,000. Bring cash, stock and furniture brought and commence the business. Date number 3. Goods purchased of 5,000 from Mathura Traders. पहले तो आपको ये देख के समझना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ कैश और क्रेडिट. सी द वर्ड कैश इज़ नॉट यूज, मतलब ये क्रेडिट है. हमने गुड्स परचेस किया मथुरा ट्रेडर्स के पास से, मतलब मेरे पास क्या आया? गुड्स आया. गुड्स कम्स इन मीन्स परचेस अकाउंट डेबिट. हु इज़ द गिवर? मथुरा ट्रेडर्स इज़ द गिवर. तो टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट. सो परचेस अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट 5,000 5,000. You can check the answer. Being goods of 5,000 purchased from Mathura Traders on credit. Date number 3. Date number 4. Goods sold for cash rupees 4,000. मैंने goods बेचा 4,000 रुपये का. Goods बेचा मैंने, cash वर्ड दिया, means cash comes in. So cash account debit to मेरे पास से क्या गया? Goods गया, तो to sales account. Cash account debit to sales account 4,000 4,000. Being goods are rupees 4,000 sold in cash. You got to try to understand कि entries ऐसे कैसे पास हो रही है. Yes, I know it is very first time for you people, but yes, I am also confident about that कि slowly gradually if you start trying to understand, so you will understand. That also I am damn sure, because chapter number 2 you have done it very well. Okay, so it is the basics of that only. Okay, if chapter number 2 is clear with you, if you are able to recognize which account will be debited and which account will be credited, so this is the most easiest chapter for you people. Okay, so if you are feeling any doubts or difficulties, you can give me a call. But also, I just wanted to tell you that yes, you got to revise chapter number 2 again if you are not able to find out the which account is debited and which account will be credited. Okay, continuing further. Date number 6. Purchase goods from Rushikesh of rupees 8,000 and paid half amount in cash. ध्यान से सुन लेना. मैंने 8,000 का गुड्स परचेस किया ऋषिकेश के पास से, उसको मैंने आधा अमाउंट कैश में पे किया. ठीक है, कितना पे किया मैंने कैश? 4,000. कितना कैश पे करना है बाकी? 4,000. किसको पे करूँगा? ऋषिकेश को. एम आई राइट? हु इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स? ऋषिकेश. मेरे पास गुड्स कितने का आया? 8,000 का. So purchase account debit 8,000. Purchase account debit 8,000. Okay.
टू कैश अकाउंट, कितना कैश गया मेरे पास से 4000, टू कैश अकाउंट 4000, टू ऋषिकेश अकाउंट, क्यों उसका नाम, बिकॉज उसको मुझे अभी भी पेमेंट करना बाकी, ही इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स, सो 4000 उसके नाम से। तो एंट्री क्या बनी, परचेस अकाउंट डेबिट 8000, टू कैश अकाउंट 4000, टू ऋषिकेश अकाउंट 4000, बीइंग गुड्स परचेस एंड पेड हाफ, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम ऋषिकेश एंड पेड हाफ अमाउंट इन कैश। आप इसकी दो अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो। वो कैसे, मैंने गुड्स इसको तोड़ देते हैं बीच में से, परचेस गुड्स फ्रॉम ऋषिकेश रुपीज़ 8000, अगर इतना ही होता तो एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट 8000 टू ऋषिकेश अकाउंट 8000, इतना ही पास करते हैं। अब उसके आगे पेड हाफ अमाउंट इन कैश, तो कैश किसको पे किया, ऋषिकेश को मैंने पे किया होगा ना, तो उसकी एंट्री क्या आती, ऋषिकेश इज द रिसीवर देन, तो ऋषिकेश अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 4000। दोनों का अगर हम मर्ज करते हैं नेट इफेक्ट निकालेंगे तो ये इफेक्ट निकलेगी मेरी यहाँ पे, purchase account debit 8000 to cash account 4000 to Rishikesh account 4000. Okay, continuing further, date number 7, goods are rupees 1600 returned to Mathura traders। मैंने मथुरा के पास से देखो 3 तारीख को परचेस किया था, मुझे उसके गुड्स पसंद नहीं आए तो मैंने उसको 1600 रुपये के गुड्स उसको मैंने वापस कर दिए। मैंने परचेस किया था, ये मैंने उसको वापस किया, मतलब ये हो गया मेरा परचेस रिटर्न। किसको गुड्स मैंने वापस किया, मथुरा ट्रेडर्स को, मथुरा ट्रेडर्स इज द रिसीवर, तो एंट्री क्या होगी, मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, नाउ इट इज परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न 1600। लेट अस चेक द आंसर, मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 1600, being goods of 1600 returned to Mathura traders. Next, गुड्स ऑफ रुपीज 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए मैंने यहाँ पे 600 रुपये का गुड्स दिया, मतलब यू कैन से वन टाइप की चैरिटी की मैंने, है ना, वन टाइप की चैरिटी की ना मैंने, ठीक है। गुड्स गए मेरे पास से, कहाँ गए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में गए। ओके, ये मेरा वन टाइप का चैरिटी हो गया, चैरिटी इज एन एक्सपेंस, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। मेरे पास से क्या गए, गुड्स गए, ये गुड्स तो मैंने कोई सेल तो किया नहीं है, अदर देन सेल्स, अगर गुड्स बाहर जाते हैं तो वी गॉट टू राइट परचेस, तो एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस। लेट मी सी इन्होंने क्या एंट्री पास की है, सी डोनेशन अकाउंट डेबिट, आप चैरिटी भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। ओके, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस 600 बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेस फॉर रुपीज 450, ध्यान से समझ लेना। बिजनेस कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी, कुछ एसेट्स ऐसे परचेस करता है जिसके हेल्प से वो अपने गुड्स को, मेन गुड्स को बेच सके। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, अगर मैं कोई भी ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे पास वेट करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो गुड्स को बेचने के लिए वेट करना पड़ेगा, तो वेट करने के लिए मुझे पास वेइंग मशीन चाहिए, वेट के बिना मैं अपने गुड्स को बेच नहीं सकता। तो जो मेरे लिए हेल्पिंग हैंड होता है, वन टाइप का एसेट्स हो गया, मेरे लिए हेल्पिंग हैंड है ये, तो गुड्स को बेच तभी पाऊंगा जब मैं उसका वजन करूंगा, वेट करूंगा, तभी मैं उसको बेच पाऊंगा। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड एज डेड स्टॉक, इज कॉल्ड एज डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक इट, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, 450 बीइंग इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन रुपीज़ 450 परचेज्ड, जिसके हेल्प से मैं अपने गुड्स को बेच सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द डेड स्टॉक, उसको हम लोग वन टाइप का डेड स्टॉक कहलाता है। ओके, आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट, 100 shares, डेट नंबर 15, 100 shares ऑफ श्री बसरा लिमिटेड परचेज एट रुपीज़ 30, 100 शेयर्स मतलब इन्वेस्टमेंट किया मैंने, बसरा लिमिटेड के मैंने 100 शेयर्स परचेज किए, 30 रुपये का एक मुझे पड़ा, तो हो गया 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। एंड 2% ब्रोकरेज इज पेड, 3000 रुपये पे 2%, 3000 रुपये पे 1% 30 रुपये, 2% 60 रुपये, मतलब 3060 का हो गया। और ये पूरा पेमेंट मैंने चेक से किया, मतलब 3060 का पेमेंट मैंने चेक से किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, श्री बसरा लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो आप एंट्री आएगी श्री बसरा लिमिटेड अकाउंट या श्री बसरा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने पेमेंट किया यहाँ पे चेक से, तो बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर। लेट अस सी उसने क्या किया है, देखो, शेयर्स ऑफ श्री बरसाना लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3060, आपको तो हिसाब मैंने बता दिया है।
टू बैंक अकाउंट पेमेंट मैंने चेक से किया तो बैंक इज द गिवर, बैंक उसको पे करेगी 3060. Being 100 shares of rupees 30 purchase of Sri Barsana Limited and paid 2% brokerage. Next, goods are rupees 400 sold to केदारनाथ. केदारनाथ को मैंने गुड्स यहाँ पे सेल किया. हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स? केदारनाथ. मेरे पास से क्या गए? गुड्स गए. अगर मेरे पास से गुड्स जाते हैं, ठीक है, क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? सेल्स अकाउंट. ओके, तो एंट्री विल बी केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4000. Kedarnath account debit to sales account 4000. Being goods are rupees 4000 sold on credit to Kedarnath. Payment तो किया नहीं है. Next, goods are rupees 1500 destroyed by fire. Goods मेरे जल गए तो goods तो गए ना. बिजनेस में से गुड्स तो चले गए, मतलब मेरा वन टाइप का लॉस हुआ, यू कैन से. ओके, सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. क्यों परचेस? इससे मेरा परचेस कम हो गया. सेल तो किया नहीं है मैंने उसको किसी को, ये तो मेरा परचेस यहाँ पे कम हो गया. दैट्स वाई टू परचेस अकाउंट. लेट मी चेक द एंट्री. लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू purchase account 1500. Being goods are 1500 destroyed by fire. Okay, date number 22. Half of the goods returned back from केदारनाथ. केदारनाथ को मैंने बेचा था 4000 रुपये का गुड्स, उसने मुझे आधे गुड्स वापस कर दिए. तो मेरे पास क्या है? गुड्स है, लेकिन ये तो मैंने परचेस किया नहीं है, ये तो सेल्स किया हुआ गुड्स मेरे पास वापस आता है. इसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न. ओके, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. ओके, किसने वापस किया? केदारनाथ ने वापस किया, तो केदारनाथ इज द गिवर, तो टू केदारनाथ अकाउंट. हाफ मतलब के 2000. लेट अस चेक. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट 2000. ओके, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम केदारनाथ, उसका नरेशन लिख देंगे. डेट नंबर 25. गुड्स आर रुपीज 500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. मैंने 500 का गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब बिजनेस में से गुड्स गए, पर्सनल यूज़ के लिए किया होगा, मतलब कि कहलाएगा ड्राइंग्स अकाउंट. ओके, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. गुड्स गए मेरे पास से, बिजनेस के पास से गुड्स गए, फॉर पर्सनल यूज़ के लिए गए, तो गुड्स गए तो क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़. चेक द सॉल्यूशन. देखते हैं उसने क्या एंट्री पास की है. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 500. ओके, नेक्स्ट वन. डेट नंबर 28. फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 3000 परचेस फ्रॉम बंशीधर फर्नीचर मार्ट. मैंने बंशीधर फर्नीचर मार्ट के पास से 3000 रुपये का मैंने फर्नीचर परचेस किया. मेरे पास क्या आया? फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट. हु इज़ द गिवर? बंशीधर फर्नीचर मार्ट इज द गिवर, तो टू बंशीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट 3000. बीइंग फर्नीचर परचेस फ्रॉम बंशीधर फर्नीचर मार्ट. Furniture account debit to Banshidhar Furniture Mart, being furniture of 3000 purchased from Banshidhar Furniture Mart. Number 30. After adding 20% profit, goods of profit नहीं लिखा है इन्होंने, ऐड करना है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा. After adding 20% profit of rupees 1000 sold to Chandni, carry the rupees 50 paid on her behalf. Okay, चांदनी को मैंने यहाँ पे 1000 रुपये का गुड्स मैंने चांदनी को बेचा 20% प्रॉफिट में. 1000 रुपये का 20% मतलब 1200 रुपये, और कैरेज मैंने पे किया है 50 रुपीज़ का. हु इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स? चांदनी. ओके, गुड्स कितने का था मेरे पास यहाँ पे? 1200 रुपये का. 50 रुपीज़ का मैंने कैरेज यहाँ पे पे किया, तो मैंने पे किया कैरेज, तो मुझे चांदनी के पास से 50 रुपीज़ भी लेने हैं, तो चांदनी इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो चांदनी अकाउंट डेबिट 1250. गुड्स के 1200 लेने हैं और 50 रुपये कैरेज के लेने हैं उसके बाद. 1250 टू सेल्स 1200 रुपये. ओके, और टू कैश 50 रुपीज़. जो मैंने कैरेज पे किया वो कैश मेरे पास से गया है 50 रुपीज़, तो कैश गोज आउट, तो टू कैरेज 50 रुपीज़. बीइंग गुड्स आर रुपीज़ 1000 सोल्ड टू चांदनी आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया मिसप्रिंट था वहाँ पे, एंड पेड रुपीज़ 50 ऑन हर बिहाफ. टोटल 59960 ऑन बोथ द साइड. आपको मैंने बताया था टोटल, एक पहले वाले इसमें मैंने बताया था पेज खत्म होते यू गॉट टू राइट टोटल कैरिड फॉरवर्ड. ओके, और नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर अगर आप यहाँ पे ख़त्म होता है तो यहाँ से टोटल आपको कर देना होता है 4000 के बाद. ओके, लिख देना होता है टोटल कैरिड फॉरवर्ड. ओके, जो भी अमाउंट टोटल की यहाँ पे आती होगी वो लिख के
यहाँ पे करना है। नेक्स्ट पेज में आप जाते हो तो सबसे पहले ये डेट जो 20 लिखी ना उसके ऊपर आपको पहले लिखना है टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, जो टोटल आपका ऊपर से था वो आपको नीचे लिख देना है। फिर ये एंट्री कंटिन्यू करनी है जाकि पेज वाइज टोटल आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाए। आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर विद द इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, अकाउंटिंग के रूल्स तो आपको ऑलरेडी क्लियर यहाँ पे है, जर्नल के बेसिक्स आपको ऑलरेडी क्लियर यहाँ पे है। कीप सॉल्विंग दिस एडजस्टेड इलस्ट्रेशंस अगेन एंड अगेन। ओके, एक बार देख के करो, एक बार ट्राई करो आप उसको बिना देखे करने की। डोंट लर्न द ट्रांजेक्शंस, डोंट लर्न द एंट्रीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंट्रीज बिकॉज इट इज अकाउंट्स, यू डोंट हैव टू मग अप। ओके, in commerce each and every subjects are basically that you have to understand that chapters, not mugging up the chapters। आप रटने बैठोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा इसका इफेक्ट्स, बिकॉज दिस इज जस्ट द बेस। ओके, कॉमर्स का आप बेस बना रहे हो 11th-12th में। ओके, फर्दर आप कॉमर्स में इफ़ यू आर एंटरिंग इन कॉमर्स देन ये बहुत बड़ा स्कोप है कॉमर्स के अंदर, बट ओनली एंड ओनली इफ योर बेसिक्स आर क्लियर देन इन अदर फर्दर स्टडीज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इफ़ यू आर गोइंग फॉर, तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।